my name is Shanki. Okay, I have been teaching in C2C since last 2 years. Okay, I have given CAT since 2017 and I have been able to score 99 percentile in LRDI. I didn't give 2018 exam due to some issues, but I gave 2019, I gave 2020, and I was able to secure 99 percentile in LR as well as in bonds. Okay, so this is a brief background about me. This is a brief background about me. I don't think आपको इससे ज़्यादा जानने की need है मेरे से. Okay. Second thing I want to move on is that I'll discuss 2019 CAT questions and some kind of different approach towards it. Okay, some kind of different approach towards it, because since it is a lecture based on CAT only, since it is a lecture based on CAT questions only, so it will be better to discuss CAT questions so that you can get hold of the tricks. Okay, you can get hold of the tricks. I'll discuss 2 to 3 questions which are important and which you might not have solved at that particular time, but after getting the trick you might have solved that question. Okay, let's start this question. Let's start this question now. The local office of the ABP cab company evaluates the performance of 5 cab drivers A, B, C, D, and E. Okay, for the monthly payment based on the ratings in the different 5 parameters P1 to P5. Okay, as given below. What is P1? Timely arrival. What is P2? Behavior. Comfortable ride. Driver's familiarity within the route and value for money. Guys, do you think till now we have any kind of the information which is relevant to us? Till now we have any kind of the information that is relevant to us? ऐसी कुछ भी information है क्या यहाँ पे जो बहुत ज्यादा relevant हो रही है question को लेके? अभी तक ऐसा कुछ भी है question में जो अभी तक बहुत relevant हो रहा है? Yes or no, guys? Give me the answer. Come on. नो देर इज नो सच इन्फॉर्मेशन जिसका तुम कुछ यूज कर पाओ. कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है यहाँ पे. बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर द ऑफिस असाइंस अ रेटिंग ऑफ 1 to 5 in each of these parameters. Okay, 1 to 5 in each of these parameters. Each rating is an integer from a low value of 1 to a high value of 5. Okay, the final rating of the driver is the average of his rating in these 5 parameters. The monthly payment of the driver has 2 parts, a fixed part and a final rating based bonus. If a driver gets a rating in 1 in any of the parameters, he is not eligible to get the bonus. So condition number 1, that is important. Rating of 1 anywhere, no bonus. Is it making sense to everyone? That's what it is written. To be eligible for a bonus, a driver also needs to get a rating of 5 in at least. अगर 5 होगा तो at least 1 5 चाहिए बोनस के लिए, तभी बोनस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा. 1 है तो बोनस नहीं मिलेगा, 5 है तो बोनस मिल जाएगा. 1 5 तो एटलीस्ट होनी चाहिए. ठीक है, बट 1 और 5 अगर दोनों हो गई गाइस, तो 1 और 5 अगर दोनों हो गई तो उसमें क्या करोगे? बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा बेटा? 1 और 5 अगर दोनों हो गई तो नो बोनस. ओके, the partial information related to the ratings of the driver and the different monthly payment is shown here. बोल रहा है बेटा अरुण and Barun A and B have got a rating of 5 in exactly one of the parameters. So इसको भी एक बार कहीं ना कहीं पे 5 मिला है और इसको भी एक बार कहीं ना कहीं पे 5 मिला है. Yes or no? Yes or no? It's not fixed कि इसको P1 में ही मिला है और इसको P2 में ही मिला है, बट इन दोनों को एक एक बार 5 मिला है. Yes or no? It's not necessary कि अरुण को P1 में ही 5 मिला है, वरुण को P2 में ही 5 मिला है, बट इन दोनों को एक एक बार 5 मिला है. चंदन got a rating of 5 in exactly 2 parameters. ठीक है, चंदन को 2 पैरामीटर्स में 5 मिला है. चंदन को 2 पैरामीटर्स में 5 मिला है. None of the driver has got the same rating in the 3 parameters. ठीक है, none of the driver has got the same rating in 3 parameters. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेटिंग 3 बार रिपीट नहीं हो सकती. कोई भी रेटिंग 3 बार रिपीट नहीं हो सकती. Yes or no? कोई भी रेटिंग 3 बार रिपीट नहीं हो सकती. Is everyone able to get this? Yes or no? कोई भी रेटिंग 3 बार रिपीट नहीं हो सकती. Is everyone able to get this? Yes or no? ठीक है, चलो. Okay, let's move. If Damodar does not get a bonus, guys, what was the condition of not getting a bonus? That at least Damodar should have 1. एक तो दामोदर के पास 1 होना चाहिए. Yes or no? एक तो मैं नहीं देखूंगा क्या आंसर है, मैं तुमसे पूछूंगा और तुम ही आंसर कर दोगे, देख लेना. इफ दामोदर डज नॉट गेट अ बोनस, एटलीस्ट एक 1 होना चाहिए. Yes or no?
एटलीस्ट एक 1 होगा तो दामोदर को बोनस नहीं मिलेगा, yes or no? What is the maximum possible value of his final rating? What is the maximum possible value of his final rating? तो क्या हो सकता है गाइस इसका आंसर? देखो दामोदर जो था उसको ऑलरेडी एक बार 3 मिली हुई थी, एक अगर मैंने उसको 1 दे दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द केस कि उसको बोनस ना मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ द केस ताकि उसको बोनस ना मिले, वही पूछता है। बाकी मैं 2-2 में 5-5 दे सकता हूँ और एक में 4 दे सकता हूँ। क्योंकि क्यों मैं 5-5 दे सकता हूँ 2 में? क्योंकि कोई भी 3 इवेंट के अंदर तुम रेटिंग को रिपीट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम रेटिंग देने के लिए कोई भी इवेंट में तुम 2 5 दे सकते हो और एक 4 दे सकते हो। इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? मैक्सिमम रेटिंग क्या हुई दामोदरन की? 5 + 5 + 4 + 3 + 1, that will give me a total of how much? 14 + 3 17 + 1 18. What will be the average rating? What is the average formula? Total number of observation upon number of observation. Total of observations upon number of observation. Average is always equals to mean. Okay, 18.5 will give me 3.6 as my answer. Do I have an option? Do I have an option of 3.6? Yes, I do have an option and I'll mark that option. Is the first question clear to everyone? First question is clear to each and every one of you. Okay, now we'll jump to the second question. If Imam gets a bonus, for Imam to get a bonus, at least 1 5 should be there. These were the conditions. इमाम को अगर बोनस चाहिए तो वहां पे एटलीस्ट एक 5 होना चाहिए, yes or no? लिखा हुआ है ना वहां पे कि अगर बोनस चाहिए तो एक 5 होना चाहिए और 1 एक भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर 1 प्रेजेंट हो गया तो इमाम को बोनस नहीं मिलेगा, yes or no? अगर 1 प्रेजेंट हो गया तो इमाम को बोनस नहीं मिलेगा, yes or no? तो एक 5 प्रेजेंट होना चाहिए। बोल रहा व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज फाइनल रेटिंग? कैन आई से कि एक भी 1 नहीं प्रेजेंट होगा तो गाइस मैं 2 बार 2 को ला सकता हूँ। मैं 2 बार 2 को क्यों ला सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी, कहाँ गया? नन ऑफ द ड्राइवर्स हैज गॉट द सेम रेटिंग इन 3 पैरामीटर्स। तो 2 पैरामीटर में तो सेम रेटिंग हो सकती है ना। इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट को ढंग से एनालाइज करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पैरामीटर्स में नहीं हो सकती सेम रेटिंग, बट 2 पैरामीटर में तो सेम रेटिंग हो सकती है, yes और no? गाइस yes और no? सो अगर मैंने यहाँ पे 2 और 2 ऑलरेडी फिल कर दिया तो क्या मैं यहाँ पे 3 और 3 ऑलरेडी फिल कर सकता हूँ, yes और no? अगर मैंने 2 और 2 ऑलरेडी फिल कर दिया और मेरे को यहाँ पे और कुछ फिल करना है जो आगे मिनिमम रेटिंग बनाए, जो आगे मिनिमम रेटिंग बनाए, बट एक रेटिंग मेरे को फिक्स रखनी पड़ेगी ताकि उसको बोनस मिल पाए, ताकि उसको बोनस मिल पाए। So that will be 5 + 3 + 3 + 2 + 2. That will give me my answer as how much? 15 divided by 5. That will give me answer as 3. Do you think that this question was out of radar for you? Do you think that this question was out of radar for you guys in CAT 2020? It was never. Guys, मैं honestly बोल रहा हूँ, I'm not doing this or telling you कि बेटा ये मैंने करवाया, ये तुमने खुद ने किया। गाइस ये मैं सिर्फ तुम्हें ट्रिक्स बता सकता हूँ, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, मैं कोई तुम्हें जड़ी बूटी नहीं दे सकता कि तुम हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, बट हाँ मैं तुम्हें अप्रोच जरूर बता सकता हूँ। लोग पढ़ते नहीं है इस क्वेश्चन को, उनको लगता है टेबल भी दे दिया, डेटा भी दे दिया है, कैसे होगा, कैसे होगा? गाइस मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है ना आज, 11 10 जो भी नंबर है, इट वॉज अ डूएबल क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इसमें कुछ नहीं था ऐसा रॉकेट साइंस जैसा, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। Can I move to the next question now? Can I move to the, do you get an idea of this question? Did you get an idea of this question कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना था? चलो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि दूसरे क्वेश्चन पे भी अप्रोच अपनी बैठ पाए, दूसरे क्वेश्चन पे भी अप्रोच अपनी बैठ पाए। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ। प्रिंटेड क्वेश्चन कि अगर आपको इसमें ट्रिक पता है तो आप पूरे क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो आप ट्रायल एंड एरर करते रहोगे और बेटा घूमते रहोगे। कई बार किस्मत का चौका 10 मिनट में लग जाएगा, कई बार किस्मत का चौका 10 मिनट में भी ना लगे। तो वैसा टाइप का क्वेश्चन है ये, ढंग से समझने का ट्राई करना। पहले 2 मिनट तुम्हें दूंगा ताकि तुम लोग एनालाइज कर पाओ उस चीज को, पहले 2 मिनट तुम्हें दूंगा ताकि तुम लोग एक एनालाइज कर पाओ उस चीज को कि क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है। 2-3 मिनट में एनालाइज करना है, उसके बाद अपन सॉल्व कर लेंगे। का मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोगों को एक अप्रोच बताता हूँ इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए, ठीक है? इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए एक छोटी अप्रोच बताता हूँ। गाइस ये क्वेश्चन को एक बार के लिए भूल जाते हैं,
ये क्वेश्चन को एक बार के लिए भूल जाते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। मैं तुमसे एक जनरल सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे। आई डू जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन विद यू गाइस। व्हाट्स द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर? कैन एनीवन टेल मी इन द चैट? Guys, what's the largest 6 digit number? Can anyone tell me in the chat? Obviously, sir, this is a very dumb question to ask. The largest 6 digit number will be this only. The largest 6 digit number will be this only. Am I correct? Yes or no? Am I correct? Yes or no? Right? Guys, if I'll add two largest, if I'll add two largest 6 digit number, what will be the output I'll be getting? Will this be the output that I'll be getting? The output that I'll be getting? भूल जाओ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूल जाओ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बट मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर करना। अगर मैंने लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ले लिए दो, तो क्या उनका सम यही आने वाला है? क्या उनका सम 7 डिजिट आएगा? क्या उनका सम 7 डिजिट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7? यस और नो? यस और नो? करेक्ट, करेक्ट। तो गाइस तुम अगर देखो ध्यान से बोलो, अब पढ़ो क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ टू 6 digit numbers given in the first and the second rows while the sum is given in the third row. In the representation a b c d e f g h k, a b c d e f g h j k, okay, these are the number that are assigned the letters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, they are asking me directly first question, what digit does a represent? Guys इतना सा घटिया क्वेश्चन है ना ये, इतना घटिया क्वेश्चन है, ढंग से देखना क्या हो रहा है। गाइज मैं जब भी दो सबसे 6 डिजिट नंबर्स को ऐड करता हूँ सबसे बड़े, तो मेरे पास हमेशा ये नंबर 19 से बड़ा आ सकता था क्या? कभी भी। जब मैं दो 6 डिजिट नंबर को ऐड करूंगा तो ये नंबर कभी भी मेरा ये 19 से बड़ा आ सकता था क्या? yes or no? Yes or no? Everyone, I need an answer from everyone. Did you get this logic? Otherwise you won't understand this question if you didn't get this logic. गाइज मैं कभी भी 6 डिजिट नंबर को दो ऐड करूंगा तो जो मेरी 7 डिजिट नंबर का एक आंसर आएगा यहाँ पे वो कभी भी 19 से बड़ा आ सकता है क्या? यहाँ पे वो कभी भी 19 से बड़ा आ सकता है क्या? आ सकता, ऑब्वियसली नहीं आ सकता। नाउ कैन आई से कि वो 19 से बड़ा नहीं आ सकता, तो 1 तो हमेशा फिक्स है। चाहे तुम 8 8 8 8 8 करके देख लो तो भी 16 ही यहाँ पे 17 आएगा, तो यहाँ पे 1 से बड़ी चीज नहीं आ सकती। यस और नो? यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता कभी भी। यस और नो? डिड एवरीवन गेट द लॉजिक कि a का वैल्यू 1 होगा? डिड एवरीवन गेट द लॉजिक? a का वैल्यू 1 होगा? किसी ने सोचा था उस तरीके से? यूजुअली क्या होता है, ढंग से सुनो, यूजुअली होता क्या है, यूजुअली क्या होता है, हम करते हैं 11, अगर 11 हमें सम बनाना है तो 1 प्लस बी होगा, करेक्ट? दैट इज रिटन एज 1 प्लस बी। इन दोनों का सम ही 11 आएगा, तभी तो यहाँ पे 11 आ रहा है। यस और नो? 9 प्लस 9 का सम 19 क्यों आता है? क्योंकि 1 हम कैरी करते हैं पीछे से। यस और नो? यस और नो? तो 11 जो सम है वो 1 प्लस बी का सम है। क्या बी की वैल्यू 10 हो सकती है क्या? क्या बी की वैल्यू 10 हो सकती है क्या? क्या बी की वैल्यू 10 हो सकती है क्या? यस और नो? नहीं बेटा, बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हो? 9 दे दोगे यहाँ पे आप, 9 दे दोगे और बोलोगे पीछे से एक कैरी आ रहा था, पीछे से एक कैरी आ रहा था। यस और नो? पीछे से 1 कैरी आ रहा था। यस और नो? यहां तक सबको समझा? गाइज यहां तक सबको समझा? तो बी की वैल्यू भी मेरे पास निकल गई, मेरे पास बी की वैल्यू आ गई 9, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 1। क्या मेरा पहला क्वेश्चन हो गया? क्या मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया? तुम लोग बताओ, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया? तुम लोग मेरे को बताओ, क्या मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया? मैंने यहाँ पे अपने 6 मार्क्स बना लिए 2 मिनट के अंदर। मैंने यहाँ पे अपने 6 मार्क्स का टाइम कर लिया, 6 मार्क्स का 6 मार्क्स गेन कर लिए 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अब मैं चाहे तीसरा क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा ना तो मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइम को बहुत पीछे कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं टाइम को बहुत ज्यादा तेज स्पीड में कर रहा हूँ। अब देखते हैं गाइस, तुम लोग एक बात बताओ, f प्लस एफ इज इक्वल्स टू एफ ऐसा कब पॉसिबल होगा? गाइस तुम 1 प्लस 1 करोगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 करोगे 4 आ जाएगा, 3 प्लस 3 करोगे 6 आ जाएगा, 4 प्लस 4 करोगे 8 आ जाएगा, 5 प्लस 5 करोगे 10 आ जाएगा, 6 प्लस 6 करोगे 12 आ जाएगा, 7 प्लस 7 करोगे 14 आ जाएगा, 8 प्लस 8 करोगे 16 आ जाएगा, 9 प्लस 9 करोगे 18 आ जाएगा। बट 0 प्लस 0 करोगे तो क्या आएगा?
जीरो आएगा, यस और नो? 0 प्लस 0 करोगे तो 0 आएगा, यस और नो? कैन आई से एफ का वैल्यू 0 हो गया? एफ का वैल्यू 0 हो चुका है गाइस, एफ का वैल्यू 0 हो चुका है गाइस, यस और नो? यस और नो एवरीवन? आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीवन। किसी ने लिखा है सर कैन यू प्लीज टेल फॉर बी। बेटा ये देखो, तुम 9 प्लस 9 करते हो, तुम 9 प्लस 1 करते हो, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, करेक्ट? तुम्हारा 9 प्लस 1 से आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, करेक्ट? यस और नो? इसका जवाब दो पहले। अमर, अमर तुम 9 प्लस 1 करते हो तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला कि बी की वैल्यू हमें नहीं पता, और यहाँ पे कुछ प्लस 1 कर रहे हैं तो आंसर 11 आ रहा है। यहाँ पे कुछ प्लस 1 कर रहे हैं तो आंसर 11 आ रहा है। बी की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती थी अमर, बी की मैक्सिमम वैल्यू 10। एक्चुअल में तो b प्लस ए अगर इक्वल्स टू 11 है और a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 10 होगी। बट क्या b की वैल्यू 10 हो सकती है क्या अमर? b की वैल्यू कभी भी 10 हो सकती है क्या अमर? ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉट इट, वेरी गुड। तो f इज इक्वल्स टू 0 आ गया गाइस। गाइस एक चीज और देखो, यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू c, तो यहाँ पे c की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? यहाँ पे c की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है गाइस? क्या मैं बोल सकता हूँ कि c की वैल्यू 2 ही होगी? c की वैल्यू 2 ही हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि तुम जब भी 2 डिजिट नंबर हाईएस्ट ऐड करोगे तो 18 ही आएगा। 18 आएगा तो 1 ही कैरी में जा सकता है, 2 कभी कैरी में नहीं जा सकता। मेकिंग सेंस टू एवरीवन गाइस? मेकिंग सेंस टू एवरीवन? c की वैल्यू 2 क्यों होगी गाइस? मेकिंग सेंस टू एवरीवन? c की वैल्यू 2 क्यों होगी? यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है? कहना है से यहाँ पे 0 आ रहा है तो h की वैल्यू 5 होगी और इसकी वैल्यू भी 5 होगी, तभी 5 प्लस 5 10 बनेगा। 1 कैरी जाएगा, 9 प्लस 1 10 होगा और 1 कैरी का जोड़ के 11 बन जाएगा। यस और नो? यस और नो? आई डिडंट गेट द C1 बेटा। इट इज रिटन a प्लस f इज इक्वल्स टू c। आई एम टेलिंग यू f इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू 1। अगर a 1 हो गया है और तो आंसर a प्लस f का a आना चाहिए था, यस और नो? तो आंसर a प्लस f का a आना चाहिए था। अगर 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है, सबको पता है। तो a प्लस f का आंसर c क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी पीछे से एक 1 कैरी होके आ रहा है, ऑलरेडी पीछे से एक 1 कैरी होके आ रहा है, जिसकी वजह से c का आंसर 2 आ रहा है। समझ गए युक्ता? have a का वैल्यू, I have b का वैल्यू, I have c का वैल्यू, I have d का वैल्यू, I don't know d का वैल्यू, I have e का वैल्यू, no I don't have e का वैल्यू, I have f का वैल्यू, yes f is 0, I don't have g का वैल्यू, I have h का वैल्यू and मेरे से पूछ रहा है which of the following digits 3 4 6 7 cannot be represented by letter d? 3 4 6 7 चलो अभी यही बाकी है, क्योंकि 1 हो गया है, 9 हो गया है, 2 हो गया है, 0 हो गया है, 5 हो गया है, करेक्ट? ये सब हो गए हैं, करेक्ट? ये सब हो गए हैं, सब हो गए हैं। बचे हुए जो नंबर्स हैं आप देखते हैं गाइज। अगर यहाँ पे मेरे को 11 नंबर बनाना है, यहाँ पे मेरे को 11 नंबर बनाना है, g प्लस k इज इक्वल्स टू 11। आई विल आस्क यू 2 सिंपल क्वेश्चंस। g प्लस k इक्वल्स टू 11 के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटीज है 9 प्लस 2, 8 प्लस 3, 7 प्लस 4, 5 प्लस 6 और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज सबको क्लियर है, यस और नो गाइज? ये चीज सबको क्लियर है? अगर g प्लस k का 11 मेरे को टोटल बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इन्हीं सब के अंदर से पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोग मेरे को बताओ, मैं ऑलरेडी 2 की वैल्यू c को असाइन कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी 2 की वैल्यू c को असाइन कर चुका हूँ, तो क्या फर्स्ट केस पॉसिबल होगा? क्या फर्स्ट केस कभी पॉसिबल होगा? नहीं, फर्स्ट केस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी c की वैल्यू 2 है और हर इंटीजर अलग अलग वैल्यू लेके चलेगा। 8 प्लस 3 देखते हैं इसको क्या होगा, 7 प्लस 4 इसको भी देखते हैं, बट 5 प्लस 6 वाला केस भी बाहर हो जाएगा, 5 प्लस 6 वाला केस भी बाहर हो जाएगा। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? क्योंकि h की वैल्यू ऑलरेडी 5 हम डिफाइन कर चुके हैं, h की वैल्यू ऑलरेडी हम 5 डिफाइन कर चुके हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? इज इट क्लियर, यस और नो? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, 2 केस बन रहे, दोनों केस ट्राई करेंगे, दोनों केस ट्राई करेंगे, देखते हैं एक बार के लिए। बेटा अगर मैंने इसको 8 लिया, सपोज करो अगर मैंने इसको 8 लिया और यहाँ पे k की वैल्यू को 3 लिया, तो यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा और j की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्या ये पूरा सीरीज कंप्लीट कर रहा है मेरी? क्या ये मेरी पूरी सीरीज कंप्लीट कर रहा है? हाँ,
बिल्कुल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं g को एक बार 8 ले सकता हूँ, k को एक बार 3 ले सकता हूँ, ठीक है, ढंग से सुनना, k को एक बार 3 ले सकता हूँ, और फिर मेरा और क्या था, g हो गया, k हो गया, और j को 7 ले सकता हूँ, j को 7 ले सकता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? माय दिस केस इज सैटिस्फाइंग। दूसरा केस क्या बन रहा है वो देखते हैं, दूसरा केस क्या बन रहा है वो भी देखते हैं। सिमिलर केस में अगर मैंने g को 3 लिया और इसको 8 लिया, तो यहाँ पे g 3 आ जाएगा और j की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या j की वैल्यू 2 आ सकती है क्या? j की वैल्यू 2 नहीं आ सकती, क्योंकि ऑलरेडी c की वैल्यू 2 है। तो तुम्हारा ये केस क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तुम g को 3 नहीं ले सकते, तुम्हारा अभी तक एक ही केस सेटिस्फाई कर रहा है, वो ये है। दूसरा केस देखते हैं 7 और 4 वाला, दूसरा केस देखते हैं 7 और 4 वाला। ये देखो, इसको 7 ले लो, इसको 4 ले लो, ठीक है, इसको 7 ले लो, इसको 4 ले लो, इधर 7 लिख दो, इधर 7 लिखोगे तो इधर 6 आ जाएगा। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? ये भी कर जाएगा। g इज इक्वल्स टू 7, k इज इक्वल्स टू 4 एंड j इज इक्वल्स टू 6। ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर? यस और नो? यस और नो? ठीक है। बट तुम 4 और 7 लोगे ना, जब तुम 4 और 7 लोगे, 4 और 7 वाला केस देखते हैं क्या होता है। एक बार तुम इसको 4 लोगे, एक बार इसको 7 लोगे, फिर इधर 4 आएगा और इधर 3 आएगा। क्या ये केस सेटिस्फाई करेगा? क्या ये केस सेटिस्फाई करेगा? यस और नो? हाँ, ये केस भी सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई बात नहीं। तो g इज इक्वल्स टू 4, k इज इक्वल्स टू 7 और j इज इक्वल्स टू 3। ये 3 केसेस आ रहे हैं मेरे पास निकल के। अगर ये मेरी सारी कंडीशंस बैठती हैं तो मेरे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 नहीं आया, ओके 4 पेंडिंग है, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स 3, 4, 6, 7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आई एम सॉरी 3, 4, 6, 7 में कौन सी रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है लेटर डी से? बेटा लेटर डी 3 हो सकता है, इस केस में आपका लेटर डी 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेटर डी 4 हो सकता है, इस केस में आपका लेटर डी 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेटर डी 6 हो सकता है, इस केस में आपका लेटर डी 6 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट लेटर डी कभी भी 7 नहीं हो सकता। डिड एवरीवन गेट द लॉजिक? वर केक वॉक, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस वर केक वॉक, थर्ड वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थर्ड वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेकिंग सेंस टू एवरीवन? यस और नो? गाइस किसी को नहीं समझा तो पूछ लो एक बार वापस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट पीपल बेसिस ऑन द फैक्ट कि मैं तुम्हें देखो कितने अच्छे से ग्राफ के क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, मेरा कितना अच्छा ग्राफ का बेसिक्स है, तुम लोग मजा आ जाए तुम्हें पढ़ के। मैं नहीं हूँ वैसा, मेरे को हार्श रियलिटी में बहुत अच्छा बिलीव रखने में नुकसान नहीं है, मतलब फायदा मिलता है बेसिकली। तो इसीलिए मैं कैट के क्वेश्चन ही कराता हूँ हमेशा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, ताकि तुम लोगों को पता चले कि तुम जेन्युइनली सॉल्व कर सकते हो चीजें। इट्स जस्ट दैट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। यू हैव गॉट थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया है। अब अप्रोच भी देख लेते हैं ऐसे घटिया क्वेश्चन की एकदम। द फिगर बिलो शोज द स्ट्रीट मैप, क्या स्ट्रीट मैप शो कर रहा है हमें, ठीक है, फॉर अ सर्टेन रीजन विच इंटरसेक्शन मार्क फ्रॉम ए थ्रू आई। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन मार्क्ड है। गाइस किसी को नहीं समझ आ रहा हो ना, प्लीज पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये एक चौराया है। एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज अ चौराया? एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज अ चौराया? यस और नो? Everyone understand what is a चौराया? Yes or no? If you don't, then text me. I'll explain you what's a चौराया. सबको पता है ये चौराया है? चौराया का मतलब सबको पता है, मतलब basically correct. So if anyone is there from Chandigarh, he will be able to or he she'll be able to relate it better. बहुत चौराहे हैं वहाँ पे, ठीक है? So A से B तुम जाते हो, गाड़ी लेते हो अपनी, तुम गाड़ी लेके चल रहे हो, ठीक है, तुम A से
घूमते हो तुम ई जा सकते हो, ई से घूमते हो आई जा सकते हो, आई से घूमते हो जे जा सकते हो, जे से घूमते हो के जा सकते हो, के से घूमते हो आई जा सकते हो, एल से जा सकते हो। ऐसे करते करते तुम जी पे आ गए। अब तुम्हें जी पे दो चॉइसेस हैं, या तो तुम सी पे जा सकते हो, या फिर तुम बी पे जा सकते हो, या फिर तुम एफ पे जा सकते हो, या फिर तुम के पे जा सकते हो। तो यहाँ पे ये चौराहे की जगह क्या हो गया, ये पांचवा हो गया। यहाँ पे भी डायरेक्शन ओपन है, यहाँ पे भी डायरेक्शन ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे भी ओपन है। डिड एवरीवन गेट दिस लॉजिक? पहले तो ये बताओ, डायग्राम समझने से पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें सब समझा जो बोला, कि जी एक ऐसा पॉइंट है और बी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तुम 4-5 लोकेशन पे जा सकते हो, 4 की जगह। समझ गए? यस और नो? अरे समझ गए? यस और नो? ठीक है, चलो चलो बेटा। A person standing at an intersection can see only along the straight lines to other intersection that are in her line of sight and all other people standing at these intersection. उसने example दिया, a person standing at intersection G can see all the possible people standing at all these position. Did I explain you the same thing? Did I explain you the same thing? कि अगर मैं जी पे खड़ा हूं तो गाइज मैं इस इंसान को भी देख सकता हूं, 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 मैं इस इंसान को भी देख सकता हूं। एम आई क्लियर? यस और नो? और मैं ऑब्वियसली इसको भी देख ही सकता हूँ, मैं ऑब्वियसली इसको भी देख ही सकता हूँ। एम आई क्लियर? यस और नो? द पर्सन स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन जी can see the person standing at intersection E irrespective of whether there is a person standing at F. Guys, it won't matter to me, it won't matter to me यहाँ पे अगर कोई पर्सन हो या नहीं हो, बट मैं इसको जरूर देख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई पर्सन हो या नहीं हो, मैं इसको जरूर देख सकता हूँ। चलो ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। क्या बोल रहा है? 6 people U, V, W, X, Y, Z are standing at different intersection. No two people are standing at same intersection. Okay. बोल रहा है X, U and Z are standing at the three corners of a triangle formed by the street segments. Can I say that these are the triangles? This is first triangle and this is second triangle. These are two triangles that are formed. Yes or no? Just answer this. These are two triangles that are being formed in the table. अभी तक तो और कोई triangle तो बन ही नहीं रहा है ना कहीं से भी, और कोई ट्रायंगल तो कहीं से भी नहीं बन रहा है। करेक्ट? So guys, X, U, Z are three corners of the triangle formed by X can only see U and Z, Y can only see U and W. ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं एक बार के लिए। अगर X, U, Z are standing at the three corners, सपोज करते हैं मैंने गाइज X को यहाँ रखा, U को यहाँ रखा, Z को यहाँ रखा। इट्स जस्ट एन अजम्पशन, अभी रख के देख रहे हैं, जैसे होगा वैसे तुम्हें पता चल जाएगा। वो बोल रहा है X, U, Z are standing at the three corners of the triangle formed by the three street segment. X can see only U and Z. X can see only U and Z. So यहाँ पे कोई नहीं हो सकता और यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। अब ये X है तो इसको कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग, इसको रेड से मार्क कर देता हूँ इसीलिए। ये X पर्सन है, ये X पर्सन है, ये U पर्सन है, ये Z पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता इसके अकॉर्डिंग। अरे यार इसको ब्लैक से ही करता हूँ। ये चीज सबको समझ में आ गई? ये चीज सबको समझ में आ गई कि A और C पे कोई नहीं हो सकता। अगर X, U, Z ऐसे हैं तो X, U और Z को देख सकता है, यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता। सिमिलर केस में D पे भी कोई प्रेजेंट नहीं हो सकता। मेकिंग सेंस टू एवरीवन? यस और नो? मेकिंग सेंस टू एवरीवन? यस और नो? बोल रहा है X कैन ओनली सी U एंड Z, Y कैन ओनली सी U एंड W। बेटा Y अगर U एंड W को देख रहा है, ढंग से सुनना, Y अगर सिर्फ U एंड W को देख रहा है तो Y को मैं बेटा कहीं भी रख दूंगा, Y को मैं कहीं भी रख दूंगा। अगर मैंने Y को यहाँ रखा तो Y विल बी एबल टू सी Z ऑल्सो। इज दिस केस पॉसिबल? X U Z का ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं, X U Z का ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो हम एक बार ट्राई करते हैं X Z U, X Z U। ये बोल रहा है Y कैन ओनली सी U एंड W. Can I put Y here and can I put W here? Can I put Y here and can I put W here? ढंग से देखो, ढंग से देखो। Y can only see U and W. इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं। Making sense to everyone? Yes or no? Can I put it here? Can I put it here? Last वाला देखो, W cannot see V or Z. Yes, W is not able to see Z and W will not be able to see V. ठीक है? U sees V in the next intersection behind Z.
अपने आप चौथी कंडीशन वेरीफाई हो गई? अपने आप चौथी कंडीशन वेरीफाई हो गई? यस और नो? अपने आप चौथी कंडीशन वेरीफाई हो गई? डिड एवरीवन गेट द लॉजिक टू दिस क्वेश्चन? यहाँ पे x था प्लेस, यहाँ पे z हो जाएगा, यहाँ पे u हो जाएगा, यहाँ पे v है, यहाँ पे y है, यहाँ पे w है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारे सामने, 2 मिनट लगे हार्डली। बोल रहे नो वन इज स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन डी। कोई इंटरसेक्शन डी पे खड़ा है क्या? नहीं, मेरे भी इंटरसेक्शन डी पे कोई नहीं खड़ा है। हु इज स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन ए? नो वन। हु कैन वी सी? बेटा वी कैन सी जेड एंड यू ओनली. Who can we see is we can see z. What is the minimum number of the street segment that x must cross to reach y? बेटा ये पहला स्ट्रीट सेगमेंट, ये दूसरा स्ट्रीट सेगमेंट, ये तीसरा स्ट्रीट सेगमेंट, पहुंच गया 3 स्ट्रीट सेगमेंट्स में x y के पास। ये पहला स्ट्रीट सेगमेंट, x अगर सीधा b से g पे जाएगा और g से k पे जाएगा, ये दूसरा स्ट्रीट सेगमेंट। तो x को मिनिमम 2 स्ट्रीट सेगमेंट लगेंगे y तक पहुंचने के लिए। Did everyone get the logic to this question? Was it very hard कि हाँ यार कैट का क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है, हवा मच जाता है कैट के क्वेश्चन का। But did everyone get the logic? तुम लोगों को आया समझ में क्या समझाया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अप्रोच तुम्हें सिखाने की ट्राई किया एंड आई होप थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँ। मैंने 3 क्वेश्चंस तुम्हें कराए हैं कैट के। ये कैट के पास्ट पेपर में आ चुके, तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि कैट लेवल के क्वेश्चंस है, ये एक्चुअल कैट क्वेश्चंस है। So guys, I need a feedback. I just need a feedback now from you guys कि तुम्हें कैसा लगा बेसिकली मेरा टीचिंग एंड तुम्हें कुछ डाउट है जो C2C से रिलेटेड है या किसी और चीज से रिलेटेड है, तुम पूछ सकते हो। मेरा रेगुलर क्लासेस में भी स्पीड इतना ही रहता है पढ़ाने का, अप्रोच यही रहता है पढ़ाने का। ऐसा नहीं मैं तुम्हें केटर करने के लिए आया हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ तुम पूछ सकते हो फीडबैक में मैं कैसा पढ़ाता हूँ। सो यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ दैट। ठीक है, फीडबैक की बात करते हैं तो गाइस एक छोटा सा कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो जहां पे तुम्हें लगा मैं पॉजिटिव था तो पॉजिटिव बोल दो, नेगेटिव था तो नेगेटिव बोल दो। आई टेक नेगेटिव फीडबैक वेरी सीरियसली, मतलब मैं तो इम्प्रूव कर पाऊँ तो बेस्ट है मेरे लिए। तो ये एक तुमसे छोटी सी रिक्वेस्ट है एंड तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम डेफिनेटली ज्वाइन करो। इट्स द बेस्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पे तुम्हें ये सब चीजें प्रोवाइड की जा सकती है। ये है कि सेट्स का प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो बेटा? देखो क्या होता है ना युक्ता, व्हेन यू आर सॉल्विंग 100 सेट्स और 500 सेट्स, it's of no use, but when you're solving 50 quality sets ना, then it's of very much use। तो वो क्वालिटी आप नहीं ढूंढ पाओगे खुद से, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो तो। इसीलिए ट्यूशंस चल रही है ना मार्केट में, क्योंकि वो 500 को कैसे 50 में कवर करना है, दैट इज द जॉब ऑफ टीचर, दैट इज द जॉब ऑफ टीचर। आप करो खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद से प्रॉब्लम करोगे तो आप कैट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको मॉक्स मिल जाएंगे टाइम। और ये विल यू टीच क्वांट्स फ्रॉम बेसिक कमिंग न्यू बैच? हाँ बेटा पढ़ाते ही हैं, लेक्चर्स अपलोडेड भी हैं अमर। ज्योमेट्री अलजेब्रा के आप लेक्चर्स देखोगे एकदम बेसिक से पढ़ाया, एकदम बेसिक से।